Friends, we have just started with the chapter of force and motion. ठीक है, इस चैप्टर 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੇਲਰਸ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਐਲਜੈਬਰਾ बट वैक्टर्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स ऑफ एलजैबरा। सो वैक्टर्स लिए अलग रूल्स हैगे, ਉਹਦੇ रूल्स के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ मल्टीप्लीकेशन ਅੱਜ करनी है वैक्टर्स ਦੀ कि मल्टीप्लीकेशन किस तरह ਹੁੰਦੀ है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स, ਇਹਨੂੰ प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स भी बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स भी बोल सकते हो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 वैक्टर्स कंसिडर करांगे, ठीक है। 2 वैक्टर्स कंसिडर करके उन्होंने प्रोडक्ट देखांगे कि किस तरह निकलता है। हुण ध्यान नाल समझना है इनू, क्योंकि वैक्टर्स का प्रोडक्ट जिहड़ा वो तुहाडे लई नवां हैगा। हुण इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स एक्चुअली। फर्स्ट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट नूं असीं डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हैगा वैक्टर प्रोडक्ट, वैक्टर प्रोडक्ट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਐਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਵੈਕਟਰ, ਸਪੋਜ਼ ਏ ਤੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਏ ਏ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਡਾਟ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਡਾਟ ਬੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏ ਬੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਦੈਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ दिस इज थीटा, ठीक है। the angle between these 2 vectors is theta, and if we write the full form of this dot product, it is given by ab cos theta. A vector dot b vector is equal to ab cos theta, where a and b are magnitude parts, ठीक है। a ਤੇ b ਦਾ magnitude ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ cos थीटा ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ। a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ them। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ a ਡਾਟ b, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a b cos थीटा। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ a ਡਾਟ b ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ a ਡਾਟ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ab cos थीटा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, suppose it is first vector is a, second vector is b vector, ठीक है। a dot b vector is equal to b vector dot a vector, ठीक है। a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. This is called commutative law, ठीक है। This is called commutative law, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ commutative law, ठीक है। क्योंकि a डॉट b जे लिखना हो तो वो b डॉट a दे इक्वल होंदा है। इस तरह ही तुहाडे कोल हैगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूटिड लॉ दे विच असीं 3 वैक्टर्स लैंदे आ, ठीक है। जे डिस्ट्रीब्यूशन कर दित्ती जाए कि a डॉट, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ a ਡਾਟ b ਪਲੱਸ c ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ distributed like this,
जिवें स्केलर्स च हुंदा है, ठीक है। ए नूं दोनों नाल मल्टीप्लाई करना है, पर इत्थे डॉट प्रोडक्ट जरूर लगाना हैगा, क्योंकि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इनू इस तरह नहीं करना कि ए बी तो ए सी कला लिख लो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। थर्ड की है कि जो जे कोई दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर है, सपोज द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज 90 डिग्री, ठीक है। ए वैक्टर तो बी वैक्टर च एंगल 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। जे इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल मेड बाय देम विल बी 90 डिग्री, ठीक है। सो ए डॉट बी कितने इक्वल हो जाएगा, ए बी, असी पहले ही लिख चुके हैं ए बी कॉस थीटा होंदा है, तो ए बी कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होंदा है, 0, सो इट विल बी ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0 फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स होणगे तो उन्हों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होएगा। एक रूल नूं याद रखना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स दे विच एंगल क्योंकि 90 डिग्री हुंदा है तो कॉस 90 0 बन जाता है, इस करके ए डॉट बी किहदे इक्वल होएगा, 0 दे इक्वल। सो दिस इज फॉर the mutually perpendicular vectors. If the two vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be equal to 0, ठीक है। dot product will be equal to 0, ये याद रखना है, इहदा रूल डॉट प्रोडक्ट ਲਈ ਗਿਆ है वाला। हुण अगे तुहाडे कोल की हैगा, जे तुहाडे कोल यूनिट वैक्टर्स होण i j k, these three are the unit vectors, ठीक है, perpendicular to each other। i वैक्टर केड़ा हुंदा जिहड़ा x डायरेक्शन च होए, सपोज तुहाडे कोल x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस, ठीक है। दिस इज x y z। i vector is the unit vector which is pointing in the x direction, j vector is pointing in upwards direction, and z is here is k vector। दिस इज यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर मैं पहले भी तुहानूं डिफाइन किया सी कि यूनिट वैक्टर केड़ा हुंदा जिहदे उत्ते कैप हुंदी है, यह कैप हैगी है, डिफाइन करदा कि यूनिट वैक्टर है, ठीक है। सिंपल वैक्टर के उत्ते एरो पाना है, यूनिट वैक्टर के उत्ते कैप पानी है। ए आई जे के दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स और यूनिट वैक्टर्स। हुण इन्हां च असीं देखना होए डॉट प्रोडक्ट, सपोज आई डॉट जे वेखना असीं जां आई डॉट के वेखना आपस च, ठीक है। आपस जे डॉट प्रोडक्ट निकालना होए, फिर किस तरह निकालोगे, आई डॉट जे किस तरह निकालोगे, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, सिंस दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इत्थे मैं तुहानूं कहा सी मैग्नीट्यूड पार्ट लेना, ठीक है। इनू मैग्नीट्यूड नूं मैं इस तरह कह रही हाँ ताकि तुहाडे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। आई जे कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, what is the angle between I and j? It is 90 degree because these three unit vectors are mutually perpendicular to each other। x direction y ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ perpendicular ਹੁੰਦੀ, y z ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ perpendicular ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x y z ਜਿਵੇਂ mutually perpendicular ਹੈ, i j k mutually perpendicular ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ i ਦਾ j ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ j ਦਾ k ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ k ਦਾ i ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, these will be 90 degree, ठीक है। so i dot j will be equal to I j cos of the angle between them which is equal to 90 degree, and this will give you 0 value because cos 90 is 0। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ i ਡਾਟ j 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ i ਡਾਟ k ਤੇ j ਡਾਟ i ਲਿਖ ਲੈਣਾ। i ਡਾਟ k ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, i k is equal to cos 90, अगेन आई तो के 90 डिग्री, ठीक है, तो यह 0 आ जाएगा, इतने कॉस 90 कर लेना। सो यह तुहाडे कोल यह भी 0 आ गया। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। यह सारी चीज़ जिहड़ी हैगी है 0 दे इक्वल है। दिस इज फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स। सो नाउ इट शुड बी क्लियर दैट two unit vectors which are mutually perpendicular to each other, they will give the dot product to be 0, ठीक है। हुण तुहाडे कोल जे वैक्टर दा ए तुसी फोर्थ प्रॉपर्टी समझ सकते हो इहदी, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। आई जे के दे नाल जिहड़ी प्रॉपर्टी डिफाइन कीती है। हुण फिफ्थ प्रॉपर्टी की हैगी कि जे वैक्टर दा वैक्टर दे नाल ही असीं डॉट प्रोडक्ट देखिए उसे दे नाल ही,
ठीक है। जो सपोज ए दा मैं ए दे नाल ही डॉट प्रोडक्ट देखना है जां तुसी आई दा आई दे नाल ही देखना है, फिर तुसी की करोगे आई डॉट आई इज इक्वल टू की बनेगा आई मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। नाउ आई इज मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद आई, ठीक है। अपने नाल एंगल जिहड़ा हैगा ओहदा 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब इत्थे कॉस 0 बन जाएगा। इस तरह तुसी आई लै लो जां ए बी की जगह ते ए डॉट बी जे सपोज तुसी यह कह रहे हैं कि ए ते बी दे विच एंगल 0 डिग्री है, फिर तुहाडे को की वैल्यू आएगी इत्थे कॉस 0 हो जाएगा, की बनेगा यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड की हुंदा है 1, ठीक है। इहदा यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया है यूनिट वैक्टर एज द नेम इंप्लाइज इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, so it will be equal to 1 and cos 0 is already 1, so I dot ai will be giving you 1, I dot i की दे इक्वल होएगा 1 दे इक्वल। इस तरह ही तुसी j dot j करना है, k dot k करना है, this will be giving you the value to be 1, ठीक है। वैक्टर दा अपने दे नाल ही मैग्नीट्यूड जो अपने दे नाल ही डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो हमेशा 1 आएगा, यूनिटी आएगा, बिकॉज जे यूनिट वैक्टर की गल कर रही हूँ मैं, यूनिट वैक्टर च अपने नाल ही जे डॉट प्रोडक्ट लेना तो हमेशा 1 आएगा क्योंकि ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो 1 होंदा है, ठीक है। तो एंगल 0 डिग्री लेना तो कॉस 0 की होंदा है 1। ਇਹ याद रखनिया चारों चीज़ां, पिछली वीडियो भी दस्सिया सी कॉस 0 1, कॉस 90 0, साइन 0 0, साइन 90 1, ठीक है। कॉस 180 भी ला सकते हो -1 एंड साइन 180 इज 0। सो दिस शुड बी कमिटेड टू योर मैमरी, है तुहानूं याद रखनिया चाहिए चीज़ां। हुण तुहाडे कोल आ गया वैक्टर दा अपने नाल ही डॉट प्रोडक्ट जिहड़ा है वो 1 हुंदा है। ते जे असीं इहदे च यूनिट वैक्टर ना लईए, ठीक है, जे सपोज असीं यूनिट वैक्टर ना लईए ए डॉट ए लिख लीए, फिर 1 नहीं आना, फिर की आएगा ए डॉट ए का मतलब ए दा मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल इज 0, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर, कॉस 0 इज 1, दिस इज इक्वल टू 1, सो इट इज गिविंग यू ए स्क्वायर। ए डॉट ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। हुण इन्हां च यह याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट दी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैगियां, क्रॉस प्रोडक्ट दी डिफरेंट हैगियां। तो डॉट प्रोडक्ट असीं की करते हैं, एवरी सारी प्रॉपर्टीज़ नूं याद रखना, ठीक है। हुण असीं कल की करांगे क्रॉस प्रोडक्ट करांगे, इन्हां नूं चंगी तरह समझना, ओके।